Okay, assalamu alaikum everyone and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve October-November 2023, and today we are going to go with the 1-3 variant. Right? I have solved 1-1 variant, 1-2 variant, and today we are going to solve 1-3 variant. Now, in this question paper, let's start with it. Now, the question number 1, this is the blank page given. Let's begin with the question number 1. Okay. In question number 1, it says that a graph is such that the gradient at a point x comma y is dy over dx, that is given to us dy over dx is equals to minus x minus 3 x raised to power minus 1 by 2. It is given that the curve passes through point 4 comma 1. Okay, it says that find the equation of the curve. You are supposed to find the equation of the curve. Let's do that. In order to find the equation of the curve, dy over dx बेटा हमें given है. This is dy over dx is equals to x minus 3 x raised to power minus 1 by 2. और उससे हमें एक point भी दिया हुआ है, and the point P is, let me write it over here, 4 comma 1. So all I have to do is that we have to integrate because we have to find the equation of the curve. Let's do that. This is dy over dx, keeping it over here. This is dx. I just shifted it this over here. So taking integral on both these sides, so this is going to become y is equals to integral x raised to power minus 3 x raised to power minus 1 over 2. This is going to be dx. Right, now let's begin with the integration. We have to integrate it, और keep in mind one thing बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिट्स नहीं है तो हमें प्लस सी डालना पड़ेगा. So this is going to be y is equal to x raised to power 1 plus 1 divided by भी 1 plus 1 आ जाएगा minus 3 x raised to power minus 1 over 2 plus 1 divided by minus 1 over 2 plus 1, और प्लस हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट्स नहीं गिवन है. एक वर्किंग स्टेप और भी कर देते हैं. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 1 बाई 2 प्लस c. अब क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस c. राइट, अब उसने हमें एक पॉइंट गिवन था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है. इस पॉइंट को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. लेट्स डू दैट. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी x, दिस इज गोइंग टू बी y. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस c. नाउ कीप इन माइंड वन थिंग, ये जो 1 बाई 2 है पावर, इसका मतलब होता है अंडर रूट. तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस c माइनस यहाँ पे आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आपके पास 1 आ जाएगा. सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, गिव्स यू 8. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12 प्लस c. सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस c. सो c इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4. Sorry, I made a mistake. So this is going to be minus 4 over here, and the c is going to become 5. My mistake. Right? So if you want to write the equation, आपको अगर equation लिखनी है तो हमारे पास equation क्या बन जाएगी, that is going to be, ये जो हमारे पास बनी है इसमें हम place कर देंगे. So that is going to be y is equals to x square divided by 2 minus 6 x raised to power 1 by 2 plus 5. So that is going to be the final answer for this particular equation. Right? I hope that is clear to everyone. Now, moving towards the next question. In the next question, it says that question number 2 for the October-November 2023 1-3 variant. Right? So the question number 2 says that, it says that the circle with an equation x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square is equals to 40. Now keep in mind one thing, it says that this is the circle. बेटा यहीं पे एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सर्कल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये r का स्क्वायर होता है.
राइट तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी 3,5। जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस मैंने ये लिखा है। इंटरसेक्ट्स दी वाई एक्सिस, गौर से देखिएगा, उसने लिखा है वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। कहता है फाइंड दी वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स। हमें सर्ड्स की फॉर्म में आंसर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारे पास, अगर उससे कहा है इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 प्लेस कर दें। सो दिस इज 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। दिस इज गोइंग टू बी 0 माइनस 3, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विद माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 9 प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। राइट, सिंप्लीफाई दिस फर्दर। आइए जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा उससे हमें क्या है, सर्ड्स में आंसर देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 minus 9 which is eventually going to become y minus 5 whole square is equals to 31. Now अब हमें क्या करना है, इसको अंडर रूट ऑन बोथ दी साइड्स कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। जब भी अंडर रूट लेते हैं इट्स प्लस एंड अ माइनस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 31 और यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 31. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5. तो एक आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, दिस वन, इसको मैं a कह देता हूँ और ये मेरा b का कोऑर्डिनेट है. दीज टू आर द आंसर्स फॉर अस. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टुवर्ड्स द b पार्ट. बी पार्ट वो हमें क्या कहते हैं? बी पार्ट की अगर हम बात करें उससे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर ए बी. ओके, नाउ इट सेज दैट द डायमीटर इज ए बी फॉर द सर्कल, राइट. हमें उसका क्या कहते हैं, वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल. सो अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें बेटा, गौर से सुनिएगा. हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स निकले हुए हैं. अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी 0 अंडर रूट 31 प्लस 5 और दूसरा मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0 माइनस अंडर रूट 31 प्लस 5, राइट. अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैज़ अ फॉर्मूला विच इज़ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दो चीज़ें चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक हमें जो है रेडियस चाहिए. अब उससे हमें कहा है एक आपके पास सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है. लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल ओवर हियर. इफ दिस इज अ सर्कल गिवन टू अस, लेट्स से दैट दिस इज ए and this one is B and this forms the diameter. Now the diameter का हाफ पे सेंटर होता है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर द सेंटर. सो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा आपके पास, दिस इज माई x1 y1 x2 y2. सो दिस इज 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5 प्लस minus under root of 31 plus 5 divided by 2. Simplify this and this cancels out. 0 plus 0, that is 0 divided by 2, which is going to give us 0. और यहाँ पे plus 5 that is going to become 10 divided by 2, so that is going to be 5. So ये मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए. रेडियस भी निकाल लेते हैं. रेडियस क्या होगा, रेडियस निकालने के लिए आप लेंथ ऑफ ए बी निकाल लें, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें. आइए निकालते हैं. लेंथ ऑफ ए बी विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5 माइनस, अब याद रखिएगा यहाँ पे बीच में माइनस है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5
होल स्क्वायर, नेगेटिव आ गया है तो मैंने ब्रैकेट में रखा है, सो 0 माइनस 0 दैट इज गोइंग टू गिव अस 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 31 प्लस 5, ये माइनस जो है इसने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है और साइंस चेंज करेगा ये, सो दैट इज गोइंग टू बिकम प्लस अंडर रूट ऑफ 31 and this is going to become minus 5 whole square. Now this and this cancels out, right? So this square is going to be cancelled out with this. तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट 31 plus under root 31, that is going to be 2 under root of 31. This is the length of AB. We need the radius. So radius क्या होता है? AB is the diameter. ये basically मेरा क्या है? That is basically the diameter. इसका हाफ कर देंगे, रेडियस विल बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 31 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 31, दैट इज द रेडियस. सो आइए जी अपना सेंटर की इक्वेशन निकाल लेते हैं, सर्कल की, सॉरी सर्कल हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे पास 0,5 and the radius is under root of 31, so x minus 0 whole square plus y minus 5 whole square is equals to under root of 31 whole square. So this is going to be written as x ka square plus y minus 5 whole square is equals to 31. That is the answer for us. Right? I hope that is clear to everyone. Okay. Moving towards the question number 3. Now what does the question number 3 says to us? In question number 3, it says that show that the equation 5 cos of theta minus sin theta tan theta plus 1 is equals to this, may be expressed in this form. Okay, now let's solve this. This is going to be 5 cos of theta minus sin of theta tan theta plus 1 is equals to 0. It says that you have to express this equation in this particular form. बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए देखा करें आपको क्या चीज़ बनानी है, हमें जो चीज़ बनानी है वो पूरी की पूरी इक्वेशन कॉस की फॉर्म में है, तो मुझे दो चीज़ों को एलिमिनेट करना है, एक मुझे टैन को एलिमिनेट करना है और दूसरा मुझे साइन को एलिमिनेट करना है. आइए करते हैं. वी हैव एन आइडेंटिटी दैट टैन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट. सबसे पहले मैं इसको प्लेस करूँगा, 5 टैन की जगह पे क्या आ जाएगा, +1 is equals to 0. So this is going to be 5 cos of theta, यहाँ पे ये साइन वाली टर्म और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, so that is going to become sin square of theta divided by cos of theta plus 1 equals to 0, right. Simplify this further, taking an LCM, cos of theta will be my LCM, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 cos square of theta माइनस, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस इसके पास भी नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे भी cos ऑफ थीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. नाउ दिस गोज ओवर हेयर एंड मल्टीप्लाइड, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बनेगा क्या, गौर से देखिएगा. मैंने कहा है दो चीज़ों को एलिमिनेट करना था, एक साइन को करना था, एक टैन को. टैन को हमने एलिमिनेट कर दिया, जो चीज़ रह गई है हमारी दैट इज दिस साइन स्क्वायर वाली टर्म, इसको भी एलिमिनेट करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 5 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई दिस फर्दर, 5 cos स्क्वायर थीटा, ये -1 आएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई दिस फर्दर, this cos square and this can be added up, 6 cos square of theta plus cos of theta minus 1 equals to 0. So this is being proved over here. Right? I hope that is clear to everyone. Now the next thing is,
in the next part it says that hence solve this equation. हमेशा याद रखा करें बेटा, पहले पार्ट में अगर कोई इक्वेशन उसने आपसे शो करवाई है तो नेक्स्ट पार्ट में उसको वो सॉल्व ज़रूर करवाता है. अब बिफोर वी स्टार्ट दिस सॉल्विंग वी शुड नो दैट उसने यहाँ पे लिखा है 0 to 2 पाए. हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 से लेके 2 पाए, विच मीन्स दैट कि हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो हम इसको रेडियंस में सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट जी. अब नाउ इन द प्रीवियस पार्ट हमने इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. अब मैं इस इक्वेशन को लूंगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 6 cos square of theta plus cos of theta minus 1 equals to 0. Now let's solve this equation. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर देते हैं cos of theta is equals to u. आप चाहे तो इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बिकम u 6u square प्लस u माइनस 1 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसकी, तो दो फैक्टर्स बनेंगे आपके पास. वो फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे, दैट इज गोइंग टू बी 3u माइनस 1, और दूसरा आपके पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सिंपल मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है. राइट नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, u की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से. दिस इज गोइंग टू बी 3u माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आपके पास 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 0. u इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा. दूसरा u इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ जाएगा. राइट जी. अब हमारे पास क्या बनेगा, गौर से देखें क्या होगा हमारे पास. दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू u था. सो सबसे पहले cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 करते हैं. सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3. अब अपना कैलकुलेटर पकड़ेंगे हम. मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड्स एज वेल. साइड व्यू. सो this comes my calculator in the radian mode. So this is going to be shift cos inverse of 1/3. Cos inverse 1 divided by 3. So that is basically 1.23 radians. Now the limit says we have to go up till 2 pi, right? तो cos positive कहाँ कहाँ पे होता है? It's basically first quadrant add sugar to coffee. First quadrant which we got 1.23, और आपके पास cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, और वहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1.23. सो दिस इज 2 pi minus 1.23. So that is going to be theta is equals to 5.05 radians. So एक आंसर ये रहा, एक आंसर हमारा ये रहा, दोनों इंक्लूडेड है. Now we have another value of theta u as well, this one. Let's use that value as well. So this is going to be cos of theta is equals to minus 1/2. So theta is equals to cos inverse 1/2. Keep in mind one thing, ये जो नेगेटिव है ये आपके quadrants के लिए है. So this is going to be cos inverse 1 divided by 2. So that is going to be equals to pi/3. अब बेटा हमें देखना है कि cos नेगेटिव कहाँ पे होता है. तो cos नेगेटिव ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है. तो cos नेगेटिव आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस pi/3. राइट. इफ यू वांट यू कैन राइट योर आंसर इन द डेसिमल एज वेल. तो वो मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 pi/3 विच इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 2.09. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और दूसरा आपके पास क्या होगा, पाई plus pi/3 which is going to be equals to 4 pi/3 which is also equals to, आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 4.19. This is also the answer. So we have the 4 answers in this question, 1 2 3 4. और ये सारे के सारे आंसर्स मेरी लिमिट के अंदर इंक्लूडेड है क्योंकि उसने लिमिट जो है वो हमें 2 पाई की दी हुई है. I hope that is clear to everyone. So this is the solution for this part. Okay.
Moving towards this question. In the next question, it says that expand the following expressions of x up to and including x raised to power 2. We have to expand this and we have to include it up till x raised to power 2. I solve करते हैं. So this is going to be 1 plus 2x raised to power 5. राइट हमें एक्स एस टू पावर 2 तक इसको एक्सपैंड करना है. आए करते हैं. क्या होगा आपके पास. दिस इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद 5c0. ये मेरा a है, ये मेरा b है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1. जो भी आपके पास यहाँ पे होता है उसको हमने क्या करना होता है. इट इज़ गोइंग टू बी द पावर ऑफ योर a. सो दिस इज गोइंग टू बी 5 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2x रेज टू पावर 0. राइट. सो प्लस 5c1. This is going to be 1 raised to power 4 and this is going to be 2x raised to power 1. Right? Keep in mind one thing, इन दोनों का जो subtraction होता है वो यहाँ पे होता है और ये वाला नंबर जो होता है उसको as it is यहाँ पे लिखना होता है. फॉर्मूला आपकी डेटा बुकलेट में भी गिवन होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं गिवन होता है. प्लस 5c2. So this is going to be 1 raised to power 5 minus 2, that is going to be 3 and this is going to be 2x raised to power 2. उससे क्या है up till x raised to power 2 दो तो हमारे पास यहाँ पे x raised to power 2 आ जाएगा. इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहीं तक अपने आंसर को रख देते हैं. Now let's solve this. Let me shift this. Sorry. So this is going to be 5c0. So that says 1. So this is going to be written 1 over here. किसी भी चीज़ की 1 की पावर कोई भी आंसर 1 आता है. Anything within पावर 0 that is also 1. So 5c1 को अगर हम कैलकुलेटर से देखें 5 आता है, 1 की पावर 4 1 and this is going to be 2x as it is. 5c2 अगर हम देखें तो that is going to be written as 10 into 1 into 4x का square and we place dots. So this is going to be plus का sign है. So this is going to be 1 plus 10x plus 40x square. This is the answer over here. Right? Now, in this part, I hope that is clear. This is the answer for it. Next it says that उससे हमें क्या है 1 minus ax raised to power 6 where a is the constant. Again इसको भी हमें expand करना है और x raised to power 2 तक ही करना है. आइए इसको भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास. क्या होगा हमारे पास. this is my n, ये मेरा a है, ये मेरा b है. so this is going to be now 6c0. 1 रेज टू पावर आपके पास 6 आएगा माइनस ax रेज टू पावर 0. याद रखिएगा जो b होता है उसको विद साइन लेना होता है. प्लस दिस इज गोइंग टू बी 6c1. 1 रेज टू पावर आपके पास 5 आ जाएगा माइनस ax रेज टू पावर आपके पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 6c2. 1 रेज टू पावर आपके पास 4 आ जाएगा माइनस ax रेज टू पावर आपके पास 2 आ जाएगा. एंड आई प्लेस डॉट्स ओवर हियर. नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, यहीं पे रुक जाएंगे. Anything with this one that is going to give us 1. This is 1. किसी भी चीज़ की पावर 0 1 आता है. 6c1 की वैल्यू देख लेते हैं कैलकुलेटर से. 6c1 which is going to be 6. यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस ax आ गया प्लस 6c2 which is going to be 15. 1 and this is going to be minus. अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं हम. so this is going to be a square x square and I place the dots over here. Simplify this further. This is going to become 1 minus 6ax. This is going to become plus 15 a square x square. So that is going to be the answer for us. सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्ट्रेट आउट फॉर्मूला है, कोई हम यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं. Okay, now comes the next part. Next it says that in the expansion of this, the coefficient of x square is minus 5. Find the possible values of a. Now keep in mind one thing बेटा, यहाँ पे उससे possible values लिखा हुआ है. मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे जो s डला होता है इसका मतलब होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा आंसर्स निकलेंगे. यहाँ पे हमारा नहीं है कि हम कोई भी वैल्यूज लिखा हुआ है तो एक ही आंसर होगा, नहीं, वैल्यूज मीन्स 2 आंसर्स होंगे. नाउ कीप इन माइंड वन थिंग, उसने कहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 2x रेज टू पावर 5 1 माइनस ax रेज टू पावर 6. आफ्टर दीज टू terms are being multiplied,
इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज -5। अब मैं अगर एक चीज नोट करूं, इस चीज की एक्सपेंशन मैंने कर ली हुई है, वो कहाँ है, ये वाली है। मैं दोबारा से एक्सपेंशन नहीं करूंगा, मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूं और ये मैंने इधर पेस्ट कर दी। दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, राइट। आई सिंपली प्लेस द ब्रैकेट्स एज वेल। ये वाली जो आपके पास ब्रैकेट है, इसकी भी एक्सपेंशन मैंने कर ली हुई है, और वो कहाँ है, मेरे से उसने सेकंड पार्ट में करवाई है। मैं इसको यहाँ से भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई गॉट दीज टू ब्रैकेट्स एज वेल, जो कि पिछले थे, उसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इनको भी ब्रैकेट्स में डाल देंगे। उससे कहा है इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है। अब बेटा यहाँ पे आपने पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती, थोड़ा सा हम ब्रेन यूज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसे मिलेगी, दिस वन, ये जो वन है, जब ऑल द वे अराउंड इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ये वन लिखा और इसको भी विद साइन सारी चीजें लिख देनी है, प्लस 15a² एक्स स्क्वायर, एक हमें यहां से मिल गया। दूसरा, हमारे पास ये जो 10x वाली टर्म है, ये जाके जब इधर इससे मल्टीप्लाई होगी तब भी हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से हम कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, बीच में प्लस डाल देते हैं, 10x - 6ax लिख दिया, राइट। एक और जगह से भी मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, दिस 40 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 1, सो यहाँ पे बीच में प्लस डाल दें, प्लस 40 एक्स स्क्वायर कर दें एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें। सिर्फ आपने सिलेक्टिव मल्टीप्लाई करते हैं ना, सारे मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम बहुत हमारा कीमती होता है। Let's simplify this further. This is going to become 15a² x square minus 60, यहाँ पे a x square आ जाएगा, प्लस आपके पास 40 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर को ज़रा कॉमन ले लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 15a² minus 60a प्लस 40 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, राइट। He said in the question that the coefficient of x square is -5. So क्या होगा हमारे पास, this is going to be 15a² minus 60a plus 40 is equals to आपके पास क्या आ जाएगा, that is going to be -5. Shifting towards this side, this is going to be 15a² minus 60a plus 40 plus 5 equals to 0. So this is going to be 15a² minus 60a plus 45 equals to 0. Let's simplify this further. अगर मैं इसको further simplify करना चाहता हूँ तो क्या होगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जब मुझे सॉल्व करना है दैट इज गोइंग टू बी सिंपली सॉल्व विद द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। उससे पहले हम 5 को अगर चाहें तो हम 15 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 15 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे a² बच जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिवाइडेड बाय 15 which is going to be -4a² plus 45 divided by 15 which is going to be equals to 3 equals to 0. So यहाँ से मेरे पास a² minus, sorry this is not a², this is 4a only, my bad. So this is going to be -4a plus 3 equals to 0. अब अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करता हूँ तो मेरे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, एक मेरे पास a-1 बनेगा, एक मेरे पास a-3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो एक a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, दूसरी a की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। दीज बोथ आर द आंसर्स फॉर अस, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay. Moving towards question number 5. What does the question number 5 says to us? Question number 5 says, क्या कहते हैं question number 5 में? Question number 5 में वो आपका कहता है the first, second and the third term of the geometric progression. First term is 2p plus 6. Second term is 5p. याद रखिएगा ये बीच में कॉमा है। थर्ड टर्म इज 8p plus 2. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट p. हमें एक चीज पता है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो रिमेन सेम, राइट। तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टर्म, क्या बनेगा हमारे पास, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म
will be equals to the third term divided by the second term, right? I values को place कर देते हैं. So this is going to be 5p divided by 2p plus 6 is equals to 8p plus 2 divided by 5p. Simple. Values को place किया है. Cross multiply भी करते हैं. If I cross multiply this, if I cross multiply this, so क्या बनेगा हमारे पास? This is going to be 5p into 5p is equals to 2p plus 6, and the other one is going to be 8p plus 2. So this is going to be 25p square is equals to, this is going to become 16p का square plus 4p plus 6 times 8 कितना होता है? That is going to be 6 multiplied by 8, which is going to be 48p plus 12. आइए further solve करते हैं. क्या होगा हमारे पास? This is going to be 25p का square is equals to 16p square plus 48 plus 4 कितना होता है? That is going to be 52p plus 12. इस पूरे को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. (25 minus 16) कितना होगा? That is going to be 9 p square minus 52p minus 12 equals to 0. अब अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूं तो दो फैक्टर्स मेरे पास बनेंगे. एक मेरे पास कितना आ जाएगा? एक मेरे पास जो फैक्टर बनेगा that is going to be 9p plus 2 and the other one is going to be p minus 6 equals to 0. So यहाँ से एक p की वैल्यू मेरे पास minus 2 by 9 आ जाती है और दूसरी p की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी. These are going to be the answers for us. So this is how you have to solve this. I hope that is clear to everyone. Moving towards the B part. कहता है one of the value of p found is a negative fraction. Yes, we have it. इसकी बात कर रहा है वो. कहता है using this value of p find the sum of infinity of this progression. Okay, उससे कहा है ये वाली p की वैल्यू यूज करो और आपको sum of infinity find करना है. Okay जी, आइए कर देते हैं. sum of infinity का फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम यहाँ पे. सबसे पहले हमारे पास जो सम ऑफ इन्फिनिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. दैट इज द फॉर्मूला गिवन टू अस. नाउ द पॉइंट इज हमने यहाँ पे तीनों टर्म्स को लिख दिया था. इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी. वैसे तो मुझे फर्स्ट 2 टर्म्स ही बहुत हैं और ये मैंने कर दिया पेस्ट. अब उसने हमें कहा है p की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन वाली यूज़ करनी है विच मीन्स -2/9 इज द वैल्यू ऑफ p. तो यहाँ पे अगर मैं -2/9 p की वैल्यू ले रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू -2/9. तो ज़रा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी? 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6, राइट. ये मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से. इसको फॉर द टाइम भी ना हम ऊपर कर देते हैं. वी डोंट नीड दिस फॉर्मूला. सो क्या बनेगा? कैलकुलेटर में स्ट्रेट अवे प्लेस कर रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी this is going to be -4 divided by 9 plus 6. So क्या बनेगा हमारे पास? -4 divided by 9 plus 6. So this is going to be 50/9. इसको as it is रहने देते हैं, हम डेसिमल्स में नहीं लेके जाएंगे. 50 divided by 9. यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? This is going to be 5 into -2/9. So this is going to be -10 divided by 9. This is the second term. राइट. आए जी आर निकालते हैं. आर का फॉर्मूला क्या था? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म. सो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड टर्म -10 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म विच इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 9. तो यहाँ से मेरे पास ये 9 और 9 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, -1/5 आ जाएगा. दिस इज द कॉमन रेशियो आर. नाउ लेट्स प्लेस दीज वैल्यूज. हमें उसने कहा है सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करना है. सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. ए की वैल्यू मुझे पता है. ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? दैट इज दिस वन. दिस इज बेसिकली माई ए. सो दिस इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 9 -1 डिवाइडेड बाय-1/5. लेट्स सॉल्व दिस. स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर में ही प्लेस कर देते हैं.
50 divided by 9 divided by 1 plus fraction 1 divided by 5. So we got the straight away answer, which is going to be 125 divided by 27. That is the final answer for us. Right, Ji? I hope that is clear to us. Okay. Now let's move towards the question number 6. Now, for the question number 6, it says that a line has an equation y is equals to 6x minus c. A curve has an equation of y is equals to cx square plus 2x minus 3, where c is a constant. The line is tangent to the curve at point P. टेंजेंट उसने लिख दिया है, इधर ही हम लिख देते हैं जी, टेंजेंट अगर आपके पास है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0. ये हमें पता होना चाहिए. कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी एंड करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. 7 मार्क क्वेश्चन है. उसने कहा है सी की वैल्यू भी फाइंड करो और आपके पास करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं. आइए जी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले उसने कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमें और लाइन की इक्वेशन दी हुई है. लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 6x माइनस सी है और कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू cx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है. ऑल यू हैव टू डू इज दैट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. आए करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 6x माइनस सी इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं मैं. ये और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 4x प्लस सी माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई. और अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मेरा जो a होगा दैट इज गोइंग टू बी c, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल्स टू c माइनस 3 आ जाएगा. अब उसने हमें बताया है कि भाई आपका जो लाइन और कर्व है वो टेंजेंट है. तो टेंजेंट में हमने लिख दिया कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0. आई रोट इट ओवर हियर. लेट्स यूज दिस. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आपके पास क्या आएगा c इंटू c की जगह पे आ जाएगा c माइनस 3 इक्वल्स टू 0. मैंने सिंपल a b c की वैल्यूज को प्लग इन किया. आइए सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 16 माइनस 4 इंटू सी. जब मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा c स्क्वायर माइनस 3c इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 16 माइनस 4c का स्क्वायर और दिस इज गोइंग टू बी प्लस 12c इक्वल टू 0. अगेन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 4c का स्क्वायर प्लस 12c प्लस 16 इक्वल टू 0. राइट. अब अगर मुझे इसकी c की वैल्यूज निकालनी है यहाँ से तो मेरे पास सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी. उससे पहले हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. मैं माइनस 4 को कॉमन ले रहा हूँ तो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. अब मैं बड़ी आसानी से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकता हूँ. तो दो फैक्टर्स बनेंगे. एक आपके पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी c माइनस 4 और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी c प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो एक c की वैल्यू आपके पास प्लस 4 आ जाएगी, दूसरी c की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ जाएगी. दीज आर दी पॉइंट्स फॉर आंसर्स फॉर द वैल्यूज ऑफ c. लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. फिर उसने कहा है द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. हमें करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स फॉर p भी निकालने हैं. आए वो भी निकाल देते हैं. हमारे पास जो c की वैल्यूज आई हैं, राइट, गौर से सुनिएगा, c की जो वैल्यूज आई हैं आपके पास उनको हमने यूज करना है और उससे कोऑर्डिनेट निकालना है. लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, बार बार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दोनों की बनाई हुई है, राइट. इस इक्वेशन को यूज करेंगे. गौर से देखिएगा, this is the equation. I'm going to simply copy this. This is going to be copied over here. Let me paste it over here. ये मेरे पास इक्वेशन आ गई और इसके अंदर मैं c की वैल्यू को प्लेस कर दूंगा. सबसे पहले मैं c इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ. दोनों वैल्यूज को लेना है बारी बारी से.
राइट तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी 4x का स्क्वायर माइनस 4x plus 4 minus 3 equals to 0. So this is 4x square minus 4x plus 1 equals to 0. Right? अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 1, एक फैक्टर ये आएगा, दूसरा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसको हम रिपीटेड रूट्स कह रहे हैं, जब कहते होते हैं जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज आए, रिपीटेड रूट्स. राइट तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2. वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, आपने उठा के किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करते हैं जो भी आपको इजीएस्ट लगती है. लाइन वाली इक्वेशन सबसे आसान होती है. y इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, दैट वाज 6x माइनस c. सो y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1/2 माइनस c की जगह पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4. ये और ये कैंसिल हुआ, 3 माइनस 4 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी -1. सो यहाँ से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/2 कॉमा -1. एक आंसर ये है हमारे पास. राइट दूसरा कैसे निकालेंगे, अगेन एक हमारे पास c की वैल्यू 4 थी, दूसरी अब हम पिक कर रहा हूँ c इज इक्वल टू -1. राइट वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू. इक्वेशन क्या निकली हुई हमारे पास, क्वाड्रेटिक. ये अब जहां जहां c है वहां पे -1 को प्लेस करना है. आए करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी -1x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, -x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. राइट अगर आप चाहें तो -1 को कॉमन ले लें, तो यहां से मेरे पास x की दोबारा से रिपीटेड रूट्स आएंगी और वो क्या आएंगी, x प्लस 2 और दूसरी भी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा. राइट वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, जो हमारी लाइन की इक्वेशन है इसको मैं पिक कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 6x माइनस c. तो x की जगह पे अब हम क्या प्लेस करेंगे, x y इज इक्वल्स टू 6 इंटू -2 माइनस c की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी -1. सो y इज इक्वल्स टू -12 प्लस 1 विच इज गोइंग टू बी -11. तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू -2 कॉमा -11. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. एक ये है और एक आपके पास ये है. These are the two coordinates. Right? So I hope that question is clear to us. This is a very important and a simple quadratic equation question, which is to be solved with the discriminant. Right? Let's move towards question number 6. Oh, we are done with the question number 6. Let's move towards question number 7. Now, in the question number 7, what does it says? Question number 7 says that this is a function question. It says that the function f is defined by this for x is greater than 2. Right? It says that find the range of f. Now keep in mind one thing. बेटा range में अक्सर बच्चों को मसला होता है कि भाई रेंज क्या होते हैं. हमेशा याद रखें, रेंज के बारे में दो बातें याद रखा करें. Whenever you have to find the range, keep in mind one thing. रेंज के लिए दो बातें याद रखें. रेंज आर ऑलवेज द वैल्यूज ऑफ y वैल्यूज. और रेंज किसी भी फंक्शन की लिखनी है तो आपने ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन गिव. राइट तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, उससे मुझे फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब उससे यहाँ पे अंडर अ गिवन डोमेन भी यहाँ पे कहते होते हैं. ये जो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है अंडर अ गिवन डोमेन निकालना है. अब उसने लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, तो सबसे पहले मैं 2 प्लेस करता हूँ. आई नो वन थिंग, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 प्लेस कर देना है. इक्वल्स टू नहीं है उसका क्या करेंगे वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, दैट इज गोइंग टू बी 0. किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है. 1 प्लस इन्फिनिटी, द आंसर इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी ओवर हियर. राइट मैंने 2 प्लेस किया, आंसर मुझे इन्फिनिटी मिला. राइट ओके गौर से देखिएगा. लेट मी शिफ्ट इट ओवर हियर. नाउ द पॉइंट इज नेक्स्ट, अब उसने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2.
तो ग्रेटर देन 2 की अगर हम बात करें, ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 3 4 5 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 एंड दिस गोज अप टिल इंफिनिटी। तो भाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां पे जाके एंड होगा, मैं इन्फिनिटी को ही पिक कर लेता हूं। आई पिक करते हैं, एफ ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करते हैं। सो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 2। अगर किसी को इन्फिनिटी को डील करने में मसला है तो प्लीज मेरी वीडियो जाके चेक कर ले। राइट, इन्फिनिटी माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी, इन्फिनिटी के अंदर कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करे आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो उस फ्रैक्शन का आंसर जीरो होता है। सो 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज गोइंग टू गिव अस 0। सो यहां से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। तो 2 प्लेस किया, आंसर इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी प्लेस किया तो आंसर 1 आया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने क्या कहा है, आपके पास रेंज होती है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन गिव। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एज गिवन टू अस एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपको फंक्शन दे रहा है। तो अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी है तो इसकी रेंज स्ट्रेट अवे कितनी हो जाएगी, द रेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। सिंपल। अब अगर कोई बच्चा लिख देता है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तब भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप लिख दें एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज गोइंग अप टिल इन्फिनिटी, तब भी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। सो सिंपल रेंज के बारे में दो बातें याद रखा करें, रेंज y की वैल्यूज होती है और रेंज आपके पास होती है व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन गिव। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने कहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, और उसके बाद उसने हमें कहा यह है कि डोमेन ऑफ, स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। राइट, सबसे पहले डोमेन वाला कर लेते हैं। हमने रेंज याद रखें, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होती है दैट इज बेसिकली द डोमेन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। राइट, तो अब आपने याद रखना है बेटा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकाल के आए थे, क्या है जी, ग्रेटर देन 1। डोमेन लेकिन हमेशा एक्स की वैल्यूज को कहा जाता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना सा वो चेंज करना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने एक्स लिख देना है और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 डाल देना। दैट इज द आंसर फॉर अस। राइट जी, ये मेरे पास इसका डोमेन निकल आई। फिर उससे कहा है एक्सप्रेशन निकालो इसकी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख देता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास फंक्शन है दैट इज गिवन टू अस, क्या है आपके पास फंक्शन, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। लेट मी क्रॉस चेक दैट, इट्स एक्स माइनस 2 नॉट प्लस 2, एक्स माइनस 2। राइट, अब मुझे अगर इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी लेट f of x is equals to y. So this is going to be y is equals to 1 plus 3 divided by x minus 2. क्या होगा आपके पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 2 ये आ गया। राइट, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इस 2 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 3 y माइनस 1 प्लस 2 आ गया। अब अगर मुझे इनवर्स लिखना है तो इनवर्स को कैसे लिखूंगा मैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस। राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने कहा है द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस फॉर x इज ग्रेटर देन 0। फेयर इनफ, दिस इज अ g फंक्शन एंड दिस इज वैलिड फॉर x इज ग्रेटर देन 0। नाउ इट सेज दैट, उसने हमें कहा है ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर g f ऑफ x। ओके, सबसे पहले मैं f ऑफ x वाला फंक्शन ले आता हूँ, ये रहा जी मेरा f ऑफ x वाला फंक्शन, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, और उसने हमें g ऑफ x वाला फंक्शन भी दिया हुआ है। g ऑफ x वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, that is equals to 2x minus 2। राइट, सो हमें उसने कहा यह है कि हमें उसने कहा है कि जी f of x बनाओ।
तो सबसे पहले जी एफ ऑफ एक्स अगर मुझे बनाना है तो जी ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसके एक्स में, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां पे मैं एफ ऑफ एक्स वाला पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आए करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, -2 लिख दिया। राइट यहाँ पे नहीं छोड़ना है, सिंप्लीफिकेशन भी होगी। आइए इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 को अभी मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे इंटरनली सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 2 एलसीएम लिया है, x माइनस 2 प्लस 3 -2 आ गया। सो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 -2 आ गया। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 -2 आ जाएगा। टेकिंग एन एलसीएम ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 -2 इंटू x माइनस 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ जाएगा। सो दिस इज जी एफ ऑफ x विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये और ये कैंसिल हुआ, 2 plus 4 that is going to be 6 divided by x minus 2 and that is the final answer for us. Right ji, I hope that is clear to everyone. I hope the solution is also clear. Okay, now let's move towards the question number 8, and in the question number 8 what does it says? Now question number 8, it says that the diagram shows a part of the graph of y is equals to sine of x, sine bracket a bracket x plus b, where a and b are the positive constant. He's written in the question that a and b are the positive ones. It says that state the value of a and one possible value of b. You are supposed to give one possible value of b and you are supposed to find the value of a. Now keep in mind one thing, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, this is the question जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इज बीन मर्ज्ड विद द ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ जो है साइन का ग्राफ इन्वॉल्व किया गया है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास साइन का ग्राफ दिया हुआ है। फॉर माई कन्वीनियंस लेट मी ड्रॉ अ साइन ग्राफ ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे साइन के ग्राफ की बात करूँ तो साइन का ग्राफ मेरे पास एक्चुअल में होता किस तरह का है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें 0 π/2, दिस इज गोइंग टू बी पाई, दिस इज गोइंग टू बी 3 π/2 and this is going to be 2 pi, right? तो मेरे पास जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ आता है बेटा, वो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ गोज ऑल द वे अराउंड दिस एंड दिस इज द ग्राफ फॉर साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे नो डाउट वैल्यू 1 की होती है और यहाँ पे मेरे पास -1 होता है। लेकिन अगर मैं इसको, ये मेरा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट? अगर मैं इसका हाफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वो मेरे पास किस तरह का बनेगा, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say if I want to draw the half of it, तो वो मेरे पास क्या होगा, 0 यहाँ पे आएगा, this is going to be π/2, this is going to be pi, right? और अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो वो मेरे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, that the graph goes in this particular all the way around this, right? तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास +1 आ जाएगा, right जी? 1 लिखा हुआ है यहाँ पे भी और दिस। क्योंकि मैंने इसका हाफ क्यों ड्रॉ किया है, हाफ मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ग्राफ हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी हाफ गिवन है। नाउ द मेन पॉइंट इज दिस इज द ग्राफ फॉर साइन ऑफ एक्स। ये मेरा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस करके ये चीज़ बनाया हुआ है और ये आपके पास साइन ब्रैकेट a इंटू एक्स प्लस बी का ग्राफ है। हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या है। गौर से सुनिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकॉल कराऊँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, हम लिखते होते थे f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपके पास ये जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर कोई भी काम हो रहा हो दैट इज रिलेटेड टू दी x ट्रांसफॉर्मेशंस, और जहाँ जहाँ x होता है उसको हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये जो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो a इंटू एक्स प्लस बी ये इस x की जगह पे हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई नहीं है, यहाँ पे मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ दीज आर ऑल x ट्रांसफॉर्मेशंस, x ट्रांसफॉर्मेशंस। अब वो कौन कौन सी हुई है उस पर बाद में बात करते हैं।
अब अगर एक चीज यहां पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि अगर मेरे पास लेट्स से यहां पे कुछ होता और यहां पे कुछ लिखा होता, इधर साइन ऑफ एक्स के बाहर कुछ लिखा होता या इस ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा होता, ये जो ब्रैकेट आपके पास डला हुआ है, तो वो मेरे पास किसकी होती? वो मेरे पास वाई ट्रांसफॉर्मेशन होती। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन में एक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। लेट मी रीराइट द क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट a into x plus b, right? There is a number a being multiplied. याद रखें, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमारे पास वो किसकी एग्जांपल होती है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेच, राइट। और स्ट्रेच अगर हो रहा होता है तो हमें स्ट्रेचिंग फैक्टर लिखना होता है। नो डाउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस बी है, राइट, एक्स प्लस बी है। ये आपके पास क्या है? दिस इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग फैक्टर मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रांसलेशन मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय बी। इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। आई होप यहां तक सबको क्वेश्चन क्लियर है। अब आए जी अपने फिगर पे चलते हैं, गौर से एग्जामिन कीजिएगा फिगर को। यहां पे मैंने ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। लेट मी आउटलाइन इट ओवर हियर एज वेल। यहां से मेरे पास ये जो ग्राफ है ये ऑल द वे अराउंड यहां से चल रहा है, एंड दिस गोज ऑल द वे अराउंड दिस एंड दिस कम्स ओवर हियर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज गोइंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 1/3 पाई, और यहाँ पे मेरे पास 5 पाई बाय 3 पे आ रहा है। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें बेटा, गौर से देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, मेरा जो ग्राफ था हाफ वाला वो 0 से स्टार्ट होके पाई पे जा रहा था, राइट। इट्स बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग ऑल द वे अप टिल पाई। सबको क्लियर है यहां तक? ओके। मेरा जो यहां पे ग्राफ है वो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट इज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम -1/3 पाई। ये पाई 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये -π/3 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ग्राफ है वो क्या हुआ हुआ है? -π/3 पीछे गया हुआ है, राइट, विच इज बीन डन विद द ट्रांसलेशन। तो यहां से स्ट्रेट अवे मैं लिख सकता हूं कि भाई मेरे पास जो b की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू -π/3। ग्राफ ने एक्चुअल, बेटा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ये ड्रॉ हुआ हुआ है। ग्राफ ने एक्चुअली स्टार्ट कहां से होना था? 0 से। हो कहां से रहा है स्टार्ट? -π/3 से। तो मेरा ग्राफ पीछे की तरफ गया हुआ है, जिससे मुझे पता चला कि भाई b पे मेरे पास वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी -π/3, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई हुई है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सबको यहां तक क्लियर हो गया? ओके। दूसरी चीज, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसने यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इट इज बीन स्ट्रेच अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? दिस इज गोइंग ऑल द वे अराउंड। यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूं, a मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a मेरे पास देखिए ओरिजिनल ग्राफ था 0 से लेके पाए तक। अगर मैं इस ग्राफ को आगे भी लेके आऊं, हमने ये समझ लिया कि ये ग्राफ π/3 पीछे गया हुआ है। अगर मैं इस ग्राफ को आगे भी लेके आऊं तो ये ग्राफ मेरा 0 से, लेट मी चेंज द कलर, 0 से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से स्टार्ट होगा, पाई पे जाके 1 देगा, और ऑल द वे अराउंड ये किधर चला गया? 2 पाई पे चला गया, राइट। तो एक्चुअल में मेरा साइन ऑफ एक्स का ग्राफ 0 से स्टार्ट होके पाई पे फिनिश ऑफ करता है। ये मेरा जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होके 2 पाई पे जा रहा है, राइट। तो इससे पता क्या चलता है? ये मेरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हुआ हुआ है, राइट। आप देखो ना, 0 से स्टार्ट होके एक्चुअल साइन ऑफ एक्स का ग्राफ पाई तक जाना चाहिए, लेकिन हमारा 0 से स्टार्ट होके 2 पाई पे जा रहा है। तो इससे पता ये चलता है इट इज बीन स्ट्रेच अलोंग द एक्स एक्सिस। और कितना स्ट्रेच हुआ हुआ है भाई? 0 से पाई जाना है, हमारा ग्राफ 0 से 2 पाई जाना है, विच मींस ट्वाइस हुआ हुआ है। लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए अगर आपको याद हो तो स्केल फैक्टर ऑपोजिट लिखते हैं। अगर आपके पास ग्राफ आपका ट्वाइस हो रहा है, मींस वो डबल स्ट्रेच हो रहा है, तो आपका स्केल फैक्टर क्या बन जाता होता है? स्केल फैक्टर जो होता है, स्केल फैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/2। या अगर आपका ग्राफ जो है 3 टाइम्स हो रहा हो तो हम उसका स्केल फैक्टर 1/3 लिखते हैं। अगर वो ग्राफ हाफ हो रहा हो तो फिर हम उसका स्केल फैक्टर 2 लिखते होते हैं। एक्स एक्सिस में हर काम ऑपोजिट होता है। तो यहां पे मेरा जो है वो ग्राफ 0 से लेके 2 पाई जा रहा है, विच इज मीन डबल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, जिसका मतलब ये होगा स्केल फैक्टर 1/2 बन जाएगा। और स्केल फैक्टर मेरा a रिप्रेजेंट कर रहा था, तो a विल बी इक्वल्स टू 1/2। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस,
right? So these are going to be the values of your a and b. I hope this is clear to us. Okay जी, moving towards the next one. वो हमें नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट में वो कहता है another curve with the equation y is equals to f of x has a stationary point at p comma q. ठीक है, where q and p and q are the constant. This curve is transformed to the curve with an equation of this. ठीक है, अब यहाँ पे भी गौर से देखिएगा एक चीज, ये जो -3 लिखा हुआ है f of x के बाहर है, इधर ही मैं लिख देता हूँ, ये स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेच, और ये किसके अलॉन्ग है? ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, यहीं पे लिख देते हैं, राइट? अंदर 1/4 भी हो रहा है, ये जो 1/4 वाला स्ट्रेच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी आपके स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये जो है ये भी आपके स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। सिंपल सा रूल है, याद रखें। और यहां पे ये जो +8 है दैट इज बीन रिप्रेजेंटिंग ट्रांसलेशन, और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये मैंने यहीं पे बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। कहता है दिस कर्व इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन, फेयर इनफ। उसके बाद उसने कहा है फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। हमें स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे ना। इन दिस क्वेश्चन उसने हमें इक्वेशन नहीं दी है, आपको उसने इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसने ऐसे लिखा हुआ है, और उसने कहा है जी जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है जी p कॉमा q। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे उसने किया क्या है, उसने हमारे पास, लेट मी जूम एट टू यू, यहाँ पे उसने किया क्या है कि -3 मल्टीप्लाई किया है, हम भी कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू -3 एफ ऑफ एक्स। तो अब मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या बन जाएगा? याद रखें अभी मैंने बताया है कि हमारे पास जब स्टेशनरी जो भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज आएगा। दिस इज -3 जो कि स्ट्रेच अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो वाई का कोऑर्डिनेट है उसको भी मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास इधर आ जाएगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -3 f, यहां पे क्या आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ x, राइट? देयर इज अ 1/4 बीन मल्टीप्लाइड। अब ये स्ट्रेच कौन सा है? दिस इज बीन स्ट्रेच्ड अलोंग x एक्सिस, राइट? तो अब x कोऑर्डिनेट में चेंज आना है, लेकिन एक चीज याद रखें, x कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग जब चेंज आता है तो वो हर काम ऑपोजिट होता है। इट्स 1/4 बीन मल्टीप्लाइड विद x, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट के साथ क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 4p और -3q एज इट इज लिख दिया। याद रखा करें x एक्सिस के अलॉन्ग हर काम ऑपोजिट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -3f इंटू 1/4x, और आगे क्या लिखा हुआ है उसने? +8। तो अब अगेन ये हमारे पास ट्रांसलेशन है विच इज अकॉर्डिंग टू योर एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज गोइंग टू बी 4p, इसमें क्या है? माइनस है, हर काम ऑपोजिट करना, +8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8 -3 एंड q, राइट? तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होगा उसके आपके पास जो क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे स्टेशनरी पॉइंट के, वो क्या बन जाएंगे? स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 4p -8 -3q, क्योंकि उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ p एंड q अपना आंसर दें, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है? नेक्स्ट उसने क्या है, कहता है कर्व हैज एन इक्वेशन दिस, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट दिस, गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म। ओके, नॉर्मल की अगर हम बात करें, नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास इक्वेशन होती है फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। दिस इज द फॉर्मूला, राइट? दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन को पकड़ लेता हूं मैं, dy, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy/dx विल बी इक्वल्स टू, पावर क्या होती है? पीछे आके मल्टीप्लाई 1/2
एक्स रेस टू पावर 1/2 -1, और कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव 0 होता है या इग्नोर कर देते होते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एक्स रेस टू पावर क्या आएगा आपके पास डेरिवेटिव, दैट इज -1/2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी 1/√x। मुझे क्योंकि ग्रेडियंट निकालना है तो x की वैल्यू जो a की दी हुई है उसको प्लेस कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय √4 विच इज गोइंग टू बी 1/2। तो ग्रेडियंट मेरे पास आ गया। क्या बनेगा बेटा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1/2, पॉइंट ए उसने गिवन है 4,3। क्या बनेगा हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4। आए थोड़ी सी वर्किंग स्टेप्स और कर देते हैं, क्योंकि उसने कहा है mx प्लस सी की फॉर्म में देना है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 2y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 6, दैट इज गोइंग टू बी प्लस, I made a mistake. Okay, now once you got the gradient, keep in mind one thing, ये जो gradient हमारे पास आया है 1/2, ये आपके पास पॉइंट A पे gradient आया है, हमें नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए। तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट एट पॉइंट ए, वो क्या होगा, दो काम करने हैं, एक इसका नेगेटिव साइन चेंज करना है और एक इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 1 और साथ नेगेटिव लगा देंगे। अब हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है और पॉइंट ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 4,3। आज इक्वेशन निकाल देते हैं, y माइनस y1 is equals to m into x minus x1. So this is going to be y minus 3 is equals to minus 2 into x minus 4. So this is going to be y minus 3 is equals to minus 2x plus 8. So y is equals to minus 2x plus 11. That is going to be the final answer for us. Right? I hope that is clear to everyone. नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट उसने हमें कहा है अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग अ कर्व, सेम कर्व है, डेरिवेटिव दोबारा नहीं लेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव निकला हुआ है, ये डेरिवेटिव निकला हुआ है, इसी को यूटिलाइज कर लेंगे, मैं पहले से कॉपी कर रहा हूँ। इन सच अ वे दैट एट ए द रेट ऑफ इंक्रीज, अच्छा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये उसने मुझे क्या प्रोवाइड किया हुआ है, उससे मुझे dx/dt दिया हुआ है विच इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उससे क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y एट a निकालना है, ठीक है। हमें dy/dx की भी वैल्यू पता है, वो हमारे पास पॉइंट a पे, ए पॉइंट पे हमारे पास 1/2 है, हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो चेन रूल लगा देते हैं जी। यहाँ पे चेन रूल आपके पास क्या होगा, गौर से देखिएगा, चेन रूल हमारे पास इसको का क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। अगर किसी को चेन रूल बनाने में मसला है वो प्लीज़ रेट ऑफ चेंज वाली डिफरेंशिएशन की वीडियो ज़रूर चेक करें। अब dy/dx की वैल्यू हमें पता है, पॉइंट ए की बात हो रही है, उस पर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू dy/dt हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय ये dx/dt गिवन है, हमें dt/dx लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, दिस इज गोइंग टू बी 1/3 लिख देंगे, राइट। अब कुछ भी नहीं करना है, इस 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा देना है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3 जब उधर जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी 3/2 इज इक्वल टू dy/dt। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस, राइट जी। सो दिस इज द आंसर फॉर dy/dt। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहता है, कहता है एट ए, उसने क्या है, एट ए द मूविंग पॉइंट सडनली चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्पीड मूविंग डाउन द नॉर्मल इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ डिक्रीज, नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, प्लीज बेटा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। कहता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट बाय दिस। पहली चीज, ये जो हमें दिया हुआ है उसने, ये उसने dy/dt तो दिया हुआ है, लेकिन डिक्रीज है तो साथ नेगेटिव लगेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी -5। कहता है एज द पॉइंट मूव डाउन द नॉर्मल, आपको उसने कहा है पॉइंट नीचे की तरफ जब मूव कर रहा है, रेट ऑफ
चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है, पॉइंट ए की ही बात हो रही है अभी भी, ठीक है जी। अब उसने कहा क्या है, कहता है आपके पास ये जो रेट ऑफ इंक्रीज एट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालना है, विच मीन्स हमें डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू वो हमें निकालने के लिए कह रहा है, राइट जी। अब हमारे पास होगा क्या, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कहता है एट A, the moving point suddenly change the direction and speed moving down the normal, यहां पे उसने लिखा है the normal, moving down the normal। अब हम यहां पे जो dy over dx लेंगे ना बेटा, वो नॉर्मल का लेंगे, और नॉर्मल का dy over dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, dy over dx बेसिकली ग्रेडियंट को कहते हैं, और ग्रेडियंट की वैल्यू नॉर्मल पे हमारे पास -2 की है, तो यहां पे हमारे पास dy ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी -2, क्योंकि उसने लिख दिया है मूविंग डाउन द नॉर्मल, राइट, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट लिया मैंने। अब चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल मैं लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। अब dy over dx मेरे पास कितना है, दैट इज -2 इज इक्वल्स टू dy over dx दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो यहाँ से मेरे पास dx ओवर dt कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द आंसर फॉर अस। इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन स्टेटमेंट है वो आपके पास ये जो उसने मूविंग डाउन द नॉर्मल लिखा है, इससे हमें पता चला है दैट वी हैव टू टेक द dy ओवर dx ऑफ द नॉर्मल, हमें नॉर्मल का dy ओवर dx लिखना है, जो कि हमने फाइंड किया था -2। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहते हैं द डायग्राम शोज पार्ट ए पॉइंट ए बी सी लाइंग ऑन अ सर्कल विद द सेंटर ओ, फेयर इनफ, रेडियस आर, ठीक है। कहते हैं एंगल ए ओ बी इज 2.8 रेडियंस, फेयर इनफ, ठीक है। कहते हैं द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय 2 आर्क्स, शेडेड रीजन जो है वो 2 आर्क्स से बाउंड कर रहा है। द अपर आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस आर, द लोअर आर्क is the part of the circle with the center C and the radius capital R। ओके, एक आपके पास ए बी वाला सेक्टर है बेटा, एक आपके पास लोअर आर्क है जिसके लिए उसने कहा है सी सेंटर है और रेडियस कैपिटल आर है। कहता है फाइंड, उसने हमें कहा है फाइंड ए सी ओ, आपको उसने कहा है ए सी ओ फाइंड करो। गौर से देखिएगा, अच्छा ये जो पेपर 2023 वाले हैं ना बेटा, अगर आपको याद हो 1-1 वाला जो हमने वेरिएंट सॉल्व किया था, उसके अंदर भी उसने एक प्रॉपर्टी लगाई है, सेम प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे भी लगवाई है हमसे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द सर्कल गिवन टू अस। गौर से देखिएगा, ओ लेवल्स में हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं कि अगर ये सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से ऑल द वे अराउंड अपवर्ड, हम ये प्रॉपर्टी ओ लेवल्स में पढ़ के आते हैं कि ये अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, राइट। यही प्रॉपर्टी इधर भी लगी हुई है, और 1-1 में भी जो आपके पास सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन आया उधर भी लगी है। ये उसने 2.8 दिया हुआ है, तो आई कैन सेफली से दैट कि ये वाला एंगल इट इज द एंगल एट द सेंटर, तो ये वाला एंगल आपके पास सर्कमफेरेंस पे है जो कि इसका हाफ होगा। ये 2.4 गिवन है, तो ये वाला आपके पास 1.4 हो जाएगा, राइट। अब उसने हमें कहा है ए सी ओ, राइट। ए सी ओ मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ए सी ओ अगर मुझे फाइंड करना है तो वो हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। ये हमारे पास होगा, इस रेडियस ने इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया इनटू हाफ ऑफ इट, तो ये मेरे पास क्या होगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.7 रेडियंस। तो ये वाला जो आपके पास बनेगा वो 0.7 रेडियंस बन जाएगा, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं ज़रा रेडियंस के वर्ड को हम मिटा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत मेस्ड अप हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्टअप ही हुआ। नेक्स्ट, फाइंड कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। लेट्स फोकस ऑन द फिगर। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गौर से देखिएगा। लेट मी इरेज दिस एंड राइट इट स्मॉल। दिस इज 0.7।
अगर ये वाला एंगल 0.7 है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये वाला एंगल भी मैं 0.7 लिख सकता हूँ, राइट। नाउ कीप इन माइंड, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो कैन आई राइट दैट 0.7 प्लस 0.7 प्लस ओ इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से अगर मैं ओ वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस 0.7 प्लस 0.7। सो दिस इज गोइंग टू बी, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी पाई, शिफ्ट दबा के पाई माइनस 1.4, तो वो मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.741 रेडियंस। लिख देते हैं 1.741, राइट। अब उसने कहा है स्मॉल आर को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर लिखो। गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। इफ आई वांट टू डू दैट, ऑल आई हैव टू डू इज दैट साइन ऑफ 1.741 divided by capital R is equals to sine of 0.7 divided by small r, right? This angle divided by this length, ये वाला angle divided by small r, right जी। so I जी small, हमें कैपिटल R को in terms of small r करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, right? so this is going to be r sine of 1.741 divided by साइन ऑफ 0.7 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, इस तरफ आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन साइन ऑफ 1.741 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0.7, तो ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर विल बी इक्वल्स टू 1.53 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। I hope that is clear to everyone. This is the solution for the B part. Let's take it over here. Right? और इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। Moving towards the C part. Next वो हमें क्या कहता है? कहता है find the area of the shaded region in terms of R. Keep in mind one thing, in terms of R हमें solve करना है, and please look at it. It's a 7 marks question. We need a lot of working for it. देख लिया करें एक तरफ question को। अगर मैं shaded region की बात करूँ बेटा, focused on figure, पूरे figure पे focus करना है, figure damn important है हमारा, right? अब अगर मैं shaded region की बात करता हूँ, तो shaded region मेरे पास आ कैसे सकता है? Now this is a very important question. Shaded region हमारे पास कैसे निकल सकता है? Shaded region में हमारे पास बहुत सारी complicated चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास shaded region ये ऊपर ग्रे वाला है, और उसने हमें बताया हुआ है कि ये वाली जो आर्क है, हमारे पास सेक्टर कौन कौन से, पहले उसको आउटलाइन कर लेते हैं। हमारे पास एक तो सेक्टर है ए से लेके ओ तक, ओ से लेके बी तक, और ये ऑल द वे अराउंड यहाँ तक, ये वाला सेक्टर, राइट। एक तो हमारे पास ये वाला है, राइट। दूसरा हमारे पास, चलो इस सेक्टर का एरिया यहीं पे निकाल भी लेते हैं। हमने सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका एरिया भी साइड बाय साइड निकाल लेते हैं। सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है थीटा 2.8 है, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर इसका रेडियस है आर स्क्वायर, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.4 आर स्क्वायर। ये इसका स्ट्रेट अवे एरिया आ गया विद दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में दी हुई है पता ही नहीं हमें, रेडियस उसने किस में दिया हुआ है कुछ नहीं पता, तो एज इट इज लिख देते हैं बस, राइट। ये तो इसका आ गया। अब गौर से देखिएगा, इस सेक्टर में से अगर मैं ये वाला रीजन, लेट मी शेड इट, ये वाला रीजन माइनस कर दूं, आई विल बी गेटिंग माई एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले तो ये सॉर्टेड रहे। अब मुझे ये ऑरेंज वाला रीजन निकालना कैसे, उसके लिए गौर से देखें बेटा, एवरीबडी फोकस प्लीज। देयर इज अनदर सेक्टर गिवन, ए से लेके सी तक, सी से लेके बी तक, और ये हमारे पास दूसरा सेक्टर है, राइट। इस सेक्टर में से ये दो ट्राइंगल्स माइनस हो जाए तो मेरा ऑरेंज से जिसको मैंने शेड किया वो वाला निकल आएगा। सबसे पहले तो सेक्टर का निकालते हैं। अब हम निकाल रहे हैं सेक्टर ए सी बी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 1.4 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.7 कैपिटल आर का स्क्वायर। ये मेरे पास इस वाले सेक्टर का आ गया।
इसमें से मुझे ये दो ट्राइंगल्स हैं, कौन से ट्राइंगल्स हैं मैं आउटलाइन करके बता रहा हूं, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये वाला, और इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, और इधर से ये दो एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल्स बनते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास मेरा क्या कहते हैं एरिया आ जाएगा। एवरीबडी इज सॉर्टेड ऑन इट? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। आई होप दैट इज सॉर्टेड विद एवरीबॉडी, राइट? नोबडी कैन आस्क ऑन दिस, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई कैन पुट इट ऑन इट, राइट? द पॉइंट इज, गौर से देखिएगा हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं एवरीबडी। सो दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ triangle, which is going to be 1 over 2 multiplied by r into sine of 1.741, और मैं क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं इधर ही मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देता हूँ, right? So what I can do is that this 2 and this 2 cancels out, r square sine 1.741, इसकी वैल्यू हम अपने कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, sine of 1.741, so that is going to be 0.986 r square, राइट? ये मेरे पास किसका निकल आया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया है। एवरीबडी सॉर्टेड ऑन इट? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे जो एरिया, ये जो ऑरेंज वाला है, इसका अगर मुझे निकालना है, मैंने ये जो सर्कल है ये एक्सप्लेन करने के लिए किया था, ये हमारा काम हो गया। अगर मुझे ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये निकालना है तो वो मेरे पास क्या बनेगा? इस वाले एरिया की, एरिया ऑफ दिस रीजन। तो हमने इसके लिए सीखा था भाई सेक्टर ACB, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे ट्राइंगल में से। सो दिस एरिया, इसको सेगमेंट का नाम दे रहा हूं मैं, सेगमेंट विल बी इक्वल टू सेक्टर 0.7 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0.986 स्मॉल r स्क्वायर, राइट जी? सो दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। अब हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो क्या बनेगा? शेडेड रीजन, shaded region, that will be equals to area of this sector 1.4 r square minus this segment. So this is 0.7 capital R square minus 0.986 r square. Everybody clear on this? I hope this is clear to everyone. Please pause this video. There is a lot of calculations. इसको एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, राइट? आए जी, इन वर्किंग्स को नीचे लेके चलते हैं, हमें सॉल्विंग्स करनी है। ये वाली वर्किंग भी यहाँ से पिक कर रहा हूँ मैं, इसको भी इसकी स्पेस पे ले जाते हैं। 7 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा वर्किंग्स आ गई। ये इधर आ गई मेरी, और इधर से ये वाली जो वर्किंग है इसको भी पिक कर लेते हैं and let's move it down, right? Okay, now in order to find the shaded region, हमें उसने कहा है in terms of r square हमें अपना आंसर देना है, right? small r square। तो बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमने कैपिटल R की ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है। ये देखें कैपिटल R की वैल्यू निकली हुई है, आए इसको यूज करते हैं। गौर से देखिएगा, कैपिटल R किसके बराबर है? यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल R वॉज इक्वल्स टू 1.53 स्मॉल r, राइट? आए सबसे पहले तो प्लेस करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1.4 r स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 0.7 कैपिटल R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.986 r स्क्वायर। सॉल्विंग दिस फर्दर, r स्क्वायर की जगह पे ये वाली, कैपिटल R स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू प्लेस करते हैं, 1.4 r स्क्वायर माइनस 0.7 1.53 और साथ स्मॉल r भी आएगा, होल स्क्वायर प्लस 0.986 small r square. Let's do the further calculation. This is going to be 1.4 r square minus क्या होगा हमारे पास 1.53 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, आंसर विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.7, तो वो मेरे पास कितना आ गया? दैट इज गोइंग टू बी 1.639 r square plus 0.986
r square. Let's do the final calculations to get the answer. 1.4 minus 1.693, 1.4 minus 1.693 plus 0.986, and the answer is 0.747 r square, and that is the answer for us. I hope that is clear to everyone, right? So this is how you have to solve this question. Okay, let's move towards the next question. Question number 11. Now the question number 11 says to us, the diagram shows part of the curve with an equation of y is equals to x plus 2 divided by 2x minus 1 whole square. The line x is equals to 1 and x is equals to 2 intersects the curve at point P and Q. ठीक है. And R is the stationary point. Fair enough. Verify that the x coordinate of the R is 3 by 2 and find the y coordinates of the R. Okay. एट द एंड ऑफ द डे वो हमें कह ये रहा है कि हमें स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, राइट. स्टेशनरी पॉइंट अगर हमारे पास है तो याद रखिएगा स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा डी वाई, इधर लिख देता हूं मैं, डी वाई ओवर डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 0. लेट्स सॉल्व दिस. क्या होगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, बिफोर आई स्टार्ट द डिफरेंशिएशन इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2 लिख दिया, राइट. आए अब अपनी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है प्लस ये माइनस 2 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1. इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना होता है विच इज गोइंग टू बी 2. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस डी वाई ओवर डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1, ये 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी माइनस 8, 2x माइनस 1 माइनस 3, राइट. क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट निकालने निकले हैं तो स्टेशनरी पॉइंट पे डी वाई over dx that is always equals to 0. So this is going to be 0 is equals to 1 minus 8 divided by 2x minus 1 raised to power 3, just making the power positive, right. इसको अब हमें सॉल्व करना है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गौर से देखिएगा. इसको अगर मुझे सॉल्व करना है बेटा, सबसे पहले what I'm going to do is that I'm going to shift this 1 to this side. This is going to be minus 1 is equals to minus 8 divided by 2x माइनस 1 होल क्यूब. माइनस माइनस कैंसिल, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं. 2x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 8. नाउ दिस 3 शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड, दिस इज गोइंग टू बी क्यूब रूट ऑफ 8. और याद रखिएगा क्यूब रूट के साथ कोई प्लस माइनस नहीं आता. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. Simplify this further. So this is going to be 2x is equals to 2 plus 1. So this is 2x is equals to 3. X is equals to 3 by 2. That is the x coordinate being shown over here. क्योंकि उसने कहा था show करो. Once you have shown this, हमें अपनी जो ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है उसमें प्लेस करके y कोऑर्डिनेट निकालना है. आइए अपनी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में प्लेस करते हैं. क्या थी जी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन? y is equals to x plus 2 divided by 2x minus 1 whole square. So this is y is equals to 3 over 2 plus 2 divided by 2 multiplied by 3 over 2 minus 1 whole square. जहाँ जहाँ पे मेरा x था वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट को प्लेस कर दिए. तो यहाँ से मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट का आंसर आता है that is equals to 2. So that is the answer for us, right. I hope that is clear to everyone. Now let's move towards the question number 11b part. For the b part it says that find the exact area of the shaded region. आपको area of the shaded region निकालना है. Now the point is area of the shaded region अगर होता है हमारे पास, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके पास area of the shaded region दो कर्व्स के दरमियान में है तो उसका रूल ही होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ shaded region
दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अपर कर्व लिख लें या लाइन लिख लें, एक ही बात है। हमारे केस में वो लाइन पी क्यू है, माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व, राइट जी। अब अगर हम यहां पे देखें, नो डाउट हमें ये करना ही करना है। अब अगर मैं एरिया ऑफ द अपर कर्व की बात करूं तो यहां पे ये जो लाइन पी क्यू है इससे नीचे नीचे का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने का दो तरीके हैं, या तो अगर मुझे लाइन ऑफ पी क्यू पता हो, ठीक है, इसको पहले तो मैं नीचे ले जाता हूं, ये काम हमें करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। इसको यहां पे लिख देते हैं और ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। बीच में ये नेगेटिव का साइन डाल देते हैं, ठीक है जी। नाउ द पॉइंट इज, अपर कर्व की अगर मैं बात करूं तो लाइन पी क्यू अगर मुझे गिवन होती तो मैं उसको इंटीग्रेट कर देता, राइट। यहां पे मसला ये है, लाइन पी क्यू हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है व्हाट इज द लाइन पी क्यू, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा कहता हूं देखा करें अगर कोई एग्जैक्ट शेप बन रही है तो वो जरूर फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कर लिया करे, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ लेंथी प्रोसेस टू डू। मुझे लाइन पी क्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट देनी पड़ेगी, राइट। सो व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज, इफ आई क्लोजली ऑब्जर्व पी से लेके क्यू तक, अगर मैं इसको आउटलाइन करूं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट शेप बनती है विच इज अ शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। इफ यू लुक अपॉन इट, दिस इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम, राइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय S1 प्लस S2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब हाइट तो बहुत ही सॉर्टेड है, यहां से लेके यहां तक आपकी हाइट है जो कि 1 की होगी, राइट। अब मसला ये है P और Q की अगर यहां पे y कोऑर्डिनेट्स पता हो तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी, और P का अगर y कोऑर्डिनेट पता हो तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी, लेकिन वो पता नहीं है। फाइंड किया जा सकता है, वो कैसे होगा, आप ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन को पकड़ लें, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर सबसे पहले 1 को प्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1 plus 2 divided by 2 into 1 minus 1 whole square. So this is going to be y is equals to 1 plus 2 divided by 2 minus 1, that is going to be 1. 1 का square आपके पास कितना होता है, that is going to be 1. तो 1 plus 2 कितना हो जाएगा, that is going to give us 3. तो इससे पता ये चला कि यहाँ पे जो आपके पास लेंथ है ये 3 की आ गई। इसी तरीके से Q को भी फाइंड कर लेते हैं, y is equals to क्या होगा, 2 plus 2 divided by 2 into 2 minus 1 whole square. So this is going to be y is equals to 2 plus 2 का square 2 into 2, that is 4 minus 1, that is going to be 3. 2 divided by 3 का square which is going to be 9. तो यहाँ पे 9 being my LCM, so this is going to be 18 plus 2 which is going to be 20 by 9. तो यहाँ पे ये वाली जो आपके पास है 20 by 9, ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी बन गई, दैट इज गोइंग टू बी 20 by 9। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालता हूँ, गौर से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 1, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 बीइंग माय एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आएगा 27 प्लस 20, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 27 प्लस 20 विच इज गोइंग टू बी 47. सो 47 डिवाइडेड बाय 18। अगर कोई कैंसलिंग होती है तो कर लेते हैं, 47 डिवाइडेड बाय 18 कुछ भी नहीं होता तो एज इट इज लिख देते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, अपर कर्व नाम दिया हुआ हमने इसको, राइट। ये तो मेरे पास स्ट्रेट अवे यहां से निकल आया, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, इस वर्किंग को मैं नीचे ले जाता हूं, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, आई जस्ट वांट टू शिफ्ट दिस थिंग, ये मेरे पास इसका आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे हमने, वो इधर ही रहने देते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्या होगा, दूसरा हमें कर्व को इंटीग्रेट करना है। अब
कर्व्स बेटा हमेशा याद रखा करें, जब भी आप कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो उस कर्व से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है। अगर मैं उसको आउटलाइन करके बताना चाहूँ तो वो ये वाला एरिया जो कि आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा। ग्रीन से ही मैं लिख रहा हूँ, इंटेग्रल 1 से लेके 2 की लिमिट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। ठीक है जी, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगानी है। आए जी लगाते हैं, इंटेग्रल 1 से लेके 2 x प्लस, बिफोर आई स्टार्ट द इंटीग्रेशन मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाता हूं, dx। राइट जी, आए सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब प्लस c नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास लिमिट है 1 से लेके 2 की। राइट, इसको उठा के नीचे लेके जाते हैं, हम नीचे इसकी वर्किंग कर लेंगे, यहाँ पे जगह कम है हमारे पास। लेट्स शिफ्ट इट ऑल द वे डाउन एंड लेट्स डू इट ओवर हियर। राइट जी, लेट मी मेक द पार्टीशंस ओवर हियर। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे माइनस 2 आ गया। लिमिट्स आपके पास 1 से लेके 2 की है, ये और ये कैंसिल कर देते हैं हम। एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, फिर लिमिट्स प्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस 1, और दिस इज गोइंग टू बी गिविंग अस लिमिट 1 से लेके 2। मैंने इसको नीचे लेके आया हूँ ताकि मेरी पावर पॉजिटिव बन जाए, और उसके बाद इस माइनस को मैंने उधर लिख दिया। आए जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमने। दिस इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 एंड आई क्लोज इट। राइट, आए सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2s are 4 माइनस 1 विच इज गोइंग टू बी 3 माइनस 1 over 2 माइनस 1 over 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1 1 बच जाएगा। So solve this further, 3 being my LCM, so this is going to be 6 minus 1 minus यहाँ पे क्या आएगा, 2 being my LCM 1 minus 2. Simplify this further, 5 divided by 3 minus minus 1 by 2, so this is going to be 5 divided by 3 plus 1 over 2. So यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, this is going to be 6 being my LCM, तो 10 प्लस आपके पास 3 विच इज गोइंग टू बी 13 डिवाइडेड बाय 6। राइट, ये मेरा किसका है, इसको मैंने लोअर कर्व का नाम दिया था, लोअर कर्व। राइट जी, अब मेरे पास दोनों के एरियाज आ चुके हुए हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का फॉर्मूला हमने बनाया था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ द अपर कर्व माइनस द एरिया ऑफ द लोअर कर्व। मेरे पास सारे आंसर्स आ चुके हुए हैं, इधर प्लेस करता हूं मैं। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द अपर कर्व माइनस द लोअर कर्व। अपर कर्व का मेरे पास क्या एरिया आया था, दैट वाज 47 डिवाइडेड बाय 18 minus area of the lower curve which was 13 divided by 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें स्ट्रेट अवे अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज गोइंग टू बी 47 डिवाइडेड बाय 18 shifting to this minus 13 divided by 6, so that is going to give us 4 divided by 9, so this is the final answers. A lot of workings. I hope that is clear to you guys, and this comes to the end of this question along with this paper. Right, so I hope you like this solution and I hope you like this. Do like and subscribe my channel. I'll be posting more yearly papers in this channel. See you guys in the next video. Thank you so much.